Hello to all of you. Myself, Mohammad Ayaz Khan, and I am a Science and Technology faculty at Next IAS. Now, today we are here to discuss about renewable energy related programs, the potential, the challenges, the technical aspects as far as civil service exam is concerned. क्योंकि ये टॉपिक जो है, अगर if you will see दैट मेंस और प्रिलिमिनरी दोनों एग्ज़ाम्स में हम देखें तो यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं. अभी मेंस 2020 देखें आप, सो लाइक उस बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये बताएं आप, लाइक कंपेयर टू traditional sources of electricity, what are the benefits offered by solar power, full stop, and what are the schemes which have been undertaken by the government of India to promote solar power. तो पारंपरिक विद्युत के स्रोतों के मुकाबले में सौर ऊर्जा के क्या लाभ हैं और ये भारत सरकार द्वारा इसे प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए हैं, उनका एक आप ब्यौरा दीजिए. तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रिलिमिनरी में. अगर आप देखें तो सोलर पंप पर क्वेश्चन आ गया, कभी सोलर टैरिफ पर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर सवाल आ जाता है. At times they have asked a question on domestic content requirement on solar panels. So invariably लगभग आपको almost every year इस पर क्वेश्चन मिल जाएगा. प्री में, मेंस में, अभी कुछ साल पहले मेंस में सवाल आया कि भाई ये बताएं कि what are the factors responsible for the decrease in the solar power cost in India. So this type of questions will keep on coming. So primarily I am here to discuss with you in beyond the big picture initiative of Next IAS with the renewable energy aspects of India. This topic, as I said, is relevant for both preliminary and mains. दोनों प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है ये. तो अब पहला सवाल ये है कि हम इसमें डिस्कस क्या करेंगे. देखिए, सो फर्स्ट वी विल जस्ट हैव अ ब्लूप्रिंट एंड दैट ब्लूप्रिंट आई विल बी राइटिंग विद वाइट. सो डोंट वरी अबाउट दैट कि सर आपने कहा तो ब्लू था और लिख वाइट से रहे हो, जस्ट टू हैव द बेटर कंट्रास्ट. सो इफ वी सी रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, अब इसके डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं. सो अगर रिन्यूएबल एनर्जी के हम डायमेंशंस देखें, द मोस्ट प्रोमिनेंट इज, if I tell you, is solar power. So अब सोलर पावर, भाई ये तो लिख नहीं सकते कि हम इन सन फ्यूजन टेक्स प्लेस एंड दिस एंड दैट. तो अब यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे सोलर पावर में. सोलर पावर में हम इसके जो वेरियस पॉलिसी रिलेटेड डायमेंशंस हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल, उसको डिस्कस कर लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, नॉट फॉर एग्जांपल, वी विल स्टार्ट विद जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन. ठीक है, अगर अब आप जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन को डिस्कस कर रहे हो, देन यू हैव टू डिस्कस नेशनल क्लीन एनर्जी फंड ऑल्सो. Then bring Solar Energy Corporation of India. Then bring, okay, this domestic content requirement. Then bring smart grid. And then obviously you can also bring here International Solar Alliance. Then we can discuss off-grid initiatives as well. अब off-grid में अब हम अगर देखें तो यहाँ पर भी बहुत सारे initiatives हैं. PM कुसुम, PM कुसुम के बाद हम जो है आपका सोलर स्ट्रीट लाइट्स,
solar study lamps, हाँ, फिर इसके बाद there is one like 7 million solar study lamp scheme. So 7 million solar study lamp scheme. So this way we will complete our discussion of related to solar, major policy initiatives, major dimensions of that. इसके बाद हम फिर आ जाएंगे सोलर के बाद, और इसको सोलर का जो इनिशिएटिव है हम इसको लिंक करेंगे. वी विल बी लिंकिंग इट विद obviously NDC which India has committed as a part of Paris Agreement. So चलिए सोलर पावर पर ये मेजर इनिशिएटिव्स के बाद वी विल डिस्कस अबाउट विंड एनर्जी. विंड एनर्जी, हाँ, wind energy में obviously we will talk about this thing, offshore wind energy policy, and solar wind hybrid policy, isn't it? This also we will link it with NDC. Okay, now after the wind is being discussed, we will move to the next one. The next one will be related to biomass. Biomass, I am not talking about biofuels, biomass. And that biomass, obviously this will also be connected with NDC, which India has committed as a part of what? As a part of Paris Agreement. What is the target? 10,000 megawatt. Then after this biomass is being discussed upon, we will move to waste to energy. Waste to energy, the policy initiatives in this dimension will be, if you say, we will be linking it with Swachh Bharat Mission. Okay, after Swachh Bharat Mission, we will bring the concept of carbon credits here. After the concept of carbon credits, we will link it. We will link it with the another obviously initiative we have, that is river cleaning program. Then we will talk about this municipal solid waste rules and national power tariff policy. Okay, and then obviously we can also talk about the technologies for converting waste to energy. Once this has been discussed upon, we will be moving to this small hydro projects. Small hydro projects, which is again linked to what? NDC. So this is obviously, you can say, as broad a picture of renewable energy scenario in India as possible. So let's start with our discussion. So we will be starting with this component called solar power. Now, as you know, related to renewable energy, recently some statements came from the government sources that by 2030, India is looking to have a renewable energy target of 450 gigawatt, 450 gigawatt by 2030.
that is huge, that is massive, isn't it? Now here if you see current, if I include solar, wind, and this biomass and small hydro projects, the combined target for all these four is 1,75,000 megawatt by the year 2022. Okay, this is the combined one. Out of this 1,75,000 megawatt, the solar will contribute around, or not around, exactly 1 lakh megawatt. 1 lakh megawatt contribution will come from solar. So let's talk about that 1 lakh megawatt. So if you see solar, so let's start this thing. Solar 1 lakh megawatt, the breakup is, what is the breakup of 1 lakh megawatt? क्या होगा इसमें? 1 लाख मेगावाट में से 40,000 megawatt will come from rooftop panels. Rooftop panels मतलब घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगा दिए जाएंगे. ओके, अब देखो एक क्वेश्चन 2016 प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन यहां से आता है. अगर आप प्रिलिमिनरी का पेपर 2016 का देखते हैं, वहां पर एक क्वेश्चन है नेट मीटरिंग. वो नेट मीटरिंग को यहां से, अब हो सकता है 2021 में सरल इंडेक्स पर आ जाए. तो सर वो स्टेट अट्रैक्टिवनेस सोलर ऑब्वियसली इंडेक्स. सो सरल क्या है, क्यों बनाया गया? फिर 40,000 मेगावाट जो है वो अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट से अचीव किया जाएगा. सर अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट क्या होता है? अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट आर दोज विच आर हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 500 मेगावाट और मोर. तो मतलब उनकी कैपेसिटी या तो 500 मेगावाट या उससे ज्यादा होती है, उसको अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट कहते हैं. लेट मी टेल यू हियर वन थिंग दैट इफ यू विल रीड ओल्डर आर्टिकल्स, तो वहां पर इसके लिए 20,000 टारगेट था. बाद में इसको रिवाइज कर 40,000 मींस 40% कर दिया गया. किसको? अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को. 20,000 जो है रिमेनिंग 20,000, क्योंकि 1 लाख का ब्रेकअप हो जाएगा 40 40 20. वो आप किसी भी तरह से इंडिपेंडेंट सोलर पावर प्लांट्स लगा सकते हैं. सो वो मिसलेनस डाल दो आप उसके अंदर. दैट इज लाइक मिसलेनस. सो दिस इज द ब्रेकअप. No. Story is not over. Story is just starting over here. Now first let's talk about rooftop panel. अब rooftop panel के लिए क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं? So for that we have brought Saral Index. Saral Index means State Rooftop Solar Attractiveness Index. तो इसका फुल फॉर्म भी लिख लें. ओके, स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स. अब सर आप कहोगे सर सरल में क्या होता है? देखो सरल में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सरल इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ये तो कॉमन सेंस की बात है. हम अब यहां पर इस इंडेक्स में, सूचकांक में, जो भी हमारे राज्य हैं अलग अलग, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, ऐसे जितने हमारे सारे स्टेट्स हैं, उनके पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो हैं स्टेट में जो लिए गए हैं, उनके बेस पर स्टेट्स को रैंक दी जाती है कि भाई सबसे अच्छा इनिशिएटिव्स कौन ले रहे हैं सोलर पावर को प्रमोट करने में. अदर देन ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. सो सरल इंडेक्स है. इस सरल इंडेक्स में ऑब्वियसली दे रैंक द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस. तो चलिए रूफटॉप के लिए एक इनिशिएटिव तो ये आ गया. अब आप कहेंगे सर दूसरा इनिशिएटिव क्या है? इसमें अब देखो टॉपिक काफ़ी इंटर रिलेटेड रहेगा एंड मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लिंकेज इस्टेब्लिश करें यहाँ पर, क्योंकि देखिए एनालिसिस में जो है इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर, बर्ड्स आई व्यू तभी बनेगा 360 डिग्री जब हम टॉपिक्स को लिंक कर पाएंगे. तो अब रूफटॉप के लिए एक और इनिशिएटिव जो हमारे यहाँ लिया गया है वो है नेट मीटरिंग.
net metering. Now net metering obviously it is one of the example of a smart grid. तो हम इसको smart grid से link कर लेते हैं. सर नेट मीटरिंग क्या है? स्मार्ट ग्रिड जो है, अभी जस्ट वेट, अभी थोड़ी देर में स्मार्ट ग्रिड बताऊंगा मैं आपको. नेट मीटरिंग का मतलब ये है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव रूफटॉप पैनल्स at your home, and then obviously that rooftop panels will be connected to the grid से हम उनको connect कर देंगे, electricity grid, and then the contribution made by the rooftop panels at your home in the grid minus your consumption of the electricity. तो उसको इस तरह का जो arrangement है उसको net metering हमने नाम दिया गया, and it is related to what we call as smart grid. अच्छा, अब बात ये हो रही है कि रूफटॉप को जो है इस कंपोनेंट को इंटरनेशनल सोलर अलायंस के एजेंडे में भी शामिल किया जाए. Obviously, as all of you know, that International Solar Alliance was an initiative taken by India and France together in 2015 at the Paris Conference of Party on Climate Change. अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो 3 चीज़ों पर फोकस कर रहा है. अब उसमें 5 शामिल कर रहे हैं. उसमें से एक रूफटॉप पैनल है और दूसरा जो होगा वो सोलर पावर्ड व्हीकल का है. ठीक, तो देखिए अब आपके पास कितना स्कोप हो गया. आपने पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी ले लिए, टेक्नोलॉजिकल भी ले लिया, ये नेशनल हो गया, ये ऑब्वियसली टेक्निकल हो गया और ये इंटरनेशनल हो गया. आपने एग्जामिनर को तीनों चीज़ें वहाँ पर बता दी. चलिए ठीक. अब अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो है इसके लिए क्या हो रहा है? अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली अर्लियर इनिशियली द टारगेट वाज टू हैव एट लीस्ट 25 ultra mega solar power project with a capacity of 5,000 megawatt or more, but obviously this was when we were looking to produce only 20,000 megawatt through ultra mega solar power project. Now we are looking to produce much more than obviously we are looking to produce earlier. तो ऑब्वियसली जो नंबर है अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट का वो बढ़ जाएगा. चलिए ठीक, तो ये 1 लाख मेगावाट में सोलर जो हमने ऑन ग्रिड टारगेट रखा है, एंड दिस ऑन ग्रिड टारगेट ऑफ सोलर ऑब्वियसली इज समथिंग वी हैव डिसाइडेड एज जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन. तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के अंदर हम 1 लाख ऑन ग्रिड सोलर पावर प्रोड्यूस करेंगे और उस 1 लाख ऑन ग्रिड सोलर पावर प्रोडक्शन का जो ब्रेकअप है वो इस तरह से है 40,000, 40,000, 20,000. और इसमें रूफटॉप जो है उसको प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिए गए हैं. अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है एटलीस्ट 500 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है. ओके, और पहले हम इसमें कम से कम 25 इस्टेब्लिश कर रहे थे. अच्छा, अब इसमें एक और बात आ जाती है सोलर में. जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन को 3 फेजेस में एग्जीक्यूट किया जाना है और किया गया. सो इट इज हैविंग 3 फेजेस. These 3 phases of Jawaharlal Nehru National Solar Mission are: first phase from 2010 to 2013, second phase 2013 to 2017, and third phase is 2017 to 2022. Okay, अब इसमें देखो एक और डायमेंशन है कि 2010 में इसको हमने शुरू किया. अनाउंसमेंट वाज मेड इन द ईयर in 2008. सो अनाउंसमेंट वाज मेड इन 2008 और स्टार्ट होता है 2010 में. अब इसमें एक और बात आप समझिए. 2010 when 2010 यूनियन बजट वाज प्रेजेंटेड, सेंट्रल बजट वाज प्रेजेंटेड, उसमें एक प्रपोजल रखा गया that 50 rupees cess per ton of coal, per ton of coal, मतलब जो कोल माइनिंग कंपनी है, जो कोयले का उत्खनन करने वाली कंपनियां हैं, उन पर प्रति टन 50 रुपए का एक सेस शुल्क लगाया जाएगा. अच्छा ठीक है सर. बाद में 2014 में इसको बढ़ाकर
In 2014, this was increased to 400 rupees per ton. ओके, एंड इसको नाम दिया गया क्लीन इन्वायरमेंट सेस। सर आप ये क्यों बता रहे हो, अभी रुक तो जाओ। नाउ दिस क्लीन इन्वायरमेंट सेस, इसको क्या कर रहे थे हम, चाहे ये 50 रुपीज हो या 400 रुपीज हो, दिस इज ट्रांसफर्ड इनटू, इसको हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, दिस इज ट्रांसफर्ड इनटू नेशनल क्लीन एनर्जी फंड। किस में ट्रांसफर कर दिया, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड। और ये नेशनल क्लीन एनर्जी फंड से हमने पैसे को कहां लेकर आए, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड से हम पैसे को लेकर आए सेकेंड फेज में और थर्ड फेज में। ओके, कैसे लेकर आए, जस्ट वेट 2010 में तो हमने ये इनिशिएटिव लिया। 2011 में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया। जैसे कि मेरी आदत है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2018 प्रिलिमिनरी क्वेश्चन, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2018 का प्रिलिमिनरी क्वेश्चन है ये, यहां पर देखो। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का पर्पस क्या है, बेसिकली इफ आई हैव टू डिफाइन इट इन वन लाइन, its job is in the execution of the solar power projects, जहां पर गवर्नमेंट फंडिंग वगैरह कहीं पर कर रही है, तो दैट एग्जीक्यूशन हैपन्स थ्रू सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब उसने एग्जामिनर ने सवाल क्या पूछ लिया, दैट इन इंडिया सोलर पावर टैरिफ्स आर डिसाइडेड बाय सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बताओ सही है या गलत है। ऑब्वियसली टैरिफ्स डिसाइड करने की अथॉरिटी इनके पास नहीं होती, टैरिफ्स डिसाइड करने के लिए हमने अलग मैकेनिज्म बनाया हुआ है, दैट इज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। सो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर। 2010 to 13 first phase was over. When the second phase started in 2013, at that time government of India came with the proposal of domestic content requirement, 2017 preliminary question, domestic content requirement. Now domestic content requirement, उसने यही पूछा, domestic content requirement is related to, one of the option was solar panels. So if you can just focus over here, it is going to be really interesting, and somewhere you can use in your answers, wherever you feel like that it can be used. So what happened when the second phase started? Government came with the proposal that we will provide financial support. To whom? To solar power producers. But to get that financial support, वो वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा उत्पादकों पर दो कंडीशंस लगाए गए। What are those two conditions? पहली कंडीशन ये थी that government is the buyer. अब गवर्नमेंट स्टेट भी हो सकती है, सेंटर भी हो सकती है, स्टेट और सेंटर के PSU भी हो सकते हैं। चलिए ये चारों आ गए वहां पर। दूसरी कंडीशन ये थी कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ सोलर पैनल्स दे मस्ट बी बॉट फ्रॉम द डोमेस्टिक कंपनीज। अब दोनों शर्तें पूरी करिए, एक सर्टेन परसेंटेज जो है सोलर पैनल्स के वो डोमेस्टिक कंपनीज से आपको खरीदने होंगे, और दूसरा जो है आप गवर्नमेंट जो है वो बायर हो, तभी हम आपको फंडिंग देंगे। अब ये फंडिंग कहाँ से आएगी? दैट फंडिंग विल कम फ्रॉम नेशनल क्लीन एनर्जी फंड। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमने उसको कोल को एक्सपेंसिव बनाया, उस पर सेस लगाकर, and then we started using it to promote the solar power. We can use it for promoting other types of renewable energy as well, but here I am talking in the context of solar power only. चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। फिर अब जैसे ही हमने ये इसका प्रपोजल लेकर आए डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का, then Uncle Sam got angry. Now Uncle Sam, you know, US, and in those days when this thing happened, Obama was the president of US. अब
Now, what was the argument of US? The argument of US was that it is violating the national treatment clause of WTO. अब national treatment clause जो है वो क्या है? देखिए, national treatment clause of WTO, obviously we are not discussing economy, so I would like to conclude that in one line. National treatment clause of WTO says that two members who are there in WTO, they have to treat the exports of the other member in their country as it has been manufactured there. Means आप discrimination नहीं कर सकते हो, जो दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है आपकी कंट्री में और हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको, तो वी हैव टू ट्रीट द अमेरिकन सोलर पैनल एज इफ दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. सो US obviously said that, sir, no, this you can't do this. This is obviously violating the national treatment clause of what? Of WTO. But India responded. हमने कहा सर देखो, like the same WTO says that if government is the buyer, if the procurement is done by the government, then the clause of national treatment does not apply. Okay, सरकार खरीद रही है तो US ने, अब US हैं वो, आप जानते हो उनका आर्ग्यूमेंट, इधर माई वे और हाईवे, वो दूसरे पार्टी के लिए स्कोप छोड़ते नहीं ज़्यादा. तो उन्होंने कहा सर नो सर, दिस इज़ नॉट डन. You are buying solar power but imposing the condition on solar panels. Now this is obviously quite ridiculous type of argument by US, but then they are US, क्या कर सकते हो? Then after that US filed a case against India in WTO. So let me cut long story short. Finally, WTO gave decision in favor of USA. That means India cannot continue with domestic content requirement. हाँ, जो प्रोजेक्ट उसमें ऑलरेडी हो चुके थे वो तो अफेक्ट नहीं होंगे, बट फ्यूचर में हम उसको नहीं कर सकते. हाँ, इंडिया could have appealed, but we decided not to do so because obviously again probably the same decision might come from WTO. No, this decision of WTO has both plus and the minus. If you see from the perspective of domestic solar industry, it is a negative, it is minus. Why, sir? Now obviously our solar industry, why we brought domestic content requirement? The purpose of bringing domestic content requirement was कि जो हमारे जो घरेलू सौर जो पैनल हैं, उनके जो निर्माता हैं और जो उनको जो बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको एक तरह से यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे कह रही है कि इससे ख़रीदो, इनसे हम आपको वित्तीय सहायता देंगे. तो इस तरह से वो एक इंडस्ट्री खड़ी होती. मगर अब क्योंकि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट हो नहीं सकता है, जब नहीं होगा तो अगर उसके पास पैनल्स की क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं है तो आप इंपोर्ट कर लेंगे. जब इंपोर्ट कर लेंगे तो उसके लिए तो एक बॉडी बिलो हो जाएगा. ठीक है, तो इट इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोलर इंडस्ट्री इन इंडिया. बट इसका एक अच्छा एस्पेक्ट पॉजिटिव अगर हमें भी देखें, सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड्स इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अगर आप कहना चाहो, तो वो ये है कि अगर मैं गवर्नमेंट से फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहा था और आप सोलर पैनल मुझे देने वाले थे, बट आपके पास थोड़ा सा वेटिंग टाइम लग रहा था, तो इस वेटिंग टाइम का इम्पैक्ट क्या था? इस वेटिंग टाइम का इम्पैक्ट यह था कि हमारा जो पेस था सोलर पावर का वो स्लो हो रहा था, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर यू and you are not able to fulfill my needs. Now I will not wait for you, I will simply get it imported. So that's where you will find that the speed of the solar electricity production, at the rate at which the addition has happened in the last few years, it has really gone up, and today it is around 36 gigawatt we are producing, means around 36% of the target we have already achieved, and hope by 2022 we will be able to achieve the entire 100% of the target. तो ये DCR की entire controversy है. ठीक, सो अभी तक हमने रूफ टॉप का देख लिया, नेट मीटरिंग का देख लिया, और अब हम इसका जो है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन की भी हमने बात कर ली. अब इसमें एक और कंपोनेंट सोलर का अगर हम देखें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, वो है ऑफ ग्रिड का.
अब ऑफ ग्रिड में क्या क्या आ जाता है? देखो, ऑफ ग्रिड में मैं अगर आपको बताऊं तो अभी जैसे बताया पीएम कुसुम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो है अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया सोलर स्ट्रीट लाइट, हाँ, फिर सोलर स्ट्रीट लाइट्स के बाद सोलर स्टडी लैंप्स, हाँ, फिर इसके बाद अगर हम और देखना चाहें तो जो मैंने आपको बताया 7 मिलियन स्टडी लैंप स्कीम, 7 मिलियन स्टडी लैंप scheme for school going children, ठीक है। इसके अलावा एक और स्कीम है यहाँ पर, व्हाट इज दैट स्कीम? दैट इज स्केल अप ऑफ एक्सेस टू क्लीन एनर्जी। सो स्केल अप ऑफ एक्सेस to clean energy for rural livelihood, rural livelihood, ये मेजर ऑफ ग्रिड हैं। इसके अलावा अगर आप देखें एक और कंपोनेंट है इसमें, 100 मेगावाट पीक, 100 मेगावाट पीक MWP of solar off grid solar power project, 100 megawatt peak off grid solar power project। सो ये मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो हमने लिए हैं ऑफ ग्रिड सोलर पावर को प्रमोट करने के लिए। अक्सर हम में से बहुत से लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं जब हम सोलर पावर की स्टडी करते हैं इंडिया में। तो अब सोलर स्टडी लैंप्स आप जानते हो, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, तो देखिए सबसे पहले हम सोलर स्ट्रीट लाइट से शुरू करते हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट जो है, यू नो द टारगेट हियर इज, व्हाट इज द टारगेट ऑफ सोलर स्ट्रीट लाइट? दैट वी विल बी गिविंग, we will be providing 3 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट्स, ये इसका टारगेट है। सोलर स्टडी लैंप्स में टारगेट है 25 लाख सोलर स्टडी लैंप्स प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसमें एक और कंसेप्ट है ऑफ ग्रिड में कि ऐसे एरियाज, दोज एरियाज विच आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? we will be having solar power project of 25 kilowatt peak। okay, 25 kilowatt peak का मतलब है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस जो भी हैं उसमें वो जो प्लांट है वो मैक्सिमम 25 किलोवाट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। मगर ये कहाँ के लिए होगा? जो इंस्टॉलेशन इन एरियाज वेयर ग्रिड पावर हैज नॉट रीच्ड। तो ये किस लिए है? वेयर ऑब्वियसली नॉट कनेक्टेड टू ग्रिड। Okay, fine. Now scale up of this पहला तो ये हो गया, ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। दूसरा, इसके अलावा हम 100 मेगावाट पीक ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। चलिए, फिर सोलर स्टडी लैंप्स दिए जाएंगे, सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी, ठीक। और उसके अलावा ये जो 7 मिलियन स्टडी लैंप्स स्कीम है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए, वो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। क्या क्राइटेरिया है? 7 मिलियन स्टडी लैंप स्कीम फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का, इसका पहला क्राइटेरिया ये है कि जो 50% जो हाउस होल्ड हैं अगर किसी जगह पर और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस नहीं है, तो ऑब्वियसली
उनको ये दिया जाएगा। तो 50% अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड होने चाहिए। और दूसरा, अगर किसी भी ब्लॉक में ब्लॉक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जहां पर मोर देन 50% जो हाउस होल्ड्स हैं वो कैरोसिन पर डिपेंडेंट हैं, कैरोसिन का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर ये सोलर स्टडी लैंप्स दिए जाएंगे। और ये सोलर स्टडी लैंप 7 मिलियन सोलर स्टडी लैंप जो है ये किस किस स्टेट में है? दिस स्कीम इज फॉर आसाम, बिहार, देन ऑब्वियसली यू हैव झारखंड, okay, then you have Odisha, and Uttar Pradesh। प्राइमरीली ये इन स्टेट्स के लिए 7 मिलियन स्टडी लैम्प स्कीम फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो इसमें ये 2 क्राइटेरिया याद रखिएगा कि भाई 50% से ज़्यादा हाउस होल्ड अनइलेक्ट्रिफाइड हैं और वहाँ पर ब्लॉक में 50% से ज़्यादा जो घर हैं वहाँ पर कैरोसिन यूज़ हो रहा है, तो उनको स्टडी लैंप दिया जाएगा। अच्छा सर, फिर ये क्या है? स्केल अप ऑफ एक्सेस टू क्लीन एनर्जी फॉर रूरल लाइवलीहुड। यहाँ पर कीवर्ड क्या है? रूरल लाइवलीहुड है। अब ये हम स्ट्रीट लाइट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ना ही स्टडी लैंप की बात कर रहे हैं, वो दिए जा चुके हैं। हाँ, यहाँ पर सोलर एनर्जी फॉर सपोर्टिंग द लाइवलीहुड्स ऑफ द पीपल। अब भाई रूरल लाइवलीहुड में क्या आ जाता है? पोल्ट्री आ गया, उसमें किस तरह से सोलर को प्रमोट किया जाए पोल्ट्री में। हॉर्टिकल्चर आ गया, हाँ, कोल्ड स्टोरेज, सोलर कोल्ड स्टोरेज वगैरह, तो इस तरह के जो प्रमोशन होंगे वो इसके अंदर किए जाएंगे। तो आप देख लें ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। स्ट्रीट लाइट की बात अलग की जाती है, फाइन, और इसको अलग देखा जा रहा है। अच्छा, सोलर स्ट्रीट लाइट में कहीं पर आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसको हम अटल ज्योति योजना जो है उससे भी लिंक कर सकते हैं, बल्कि अटल ज्योति योजना जो है उसमें भी स्ट्रीट लाइट्स की ही बात होती है, और अटल ज्योति योजना को अजय भी कहा जाता है। ठीक, तो ये अब पीएम कुसुम एक टॉपिक बचता है हमारा। हाँ, इसके बाद नाउ इफ यू सी पीएम कुसुम जो है, अब बहुत सिंपल सा बात है कि भाई इसमें वी विल बी प्रमोटिंग सोलर पावर इन एग्रीकल्चर सेक्टर। बट क्या इतना ही सिंपल है ये? क्या इतने ही सिंपलिस्टिक तरीके से हम इसको लेकर चलें? क्योंकि अगर उसने प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन को फ्रेम करना है पीएम कुसुम पर, तो वो ये तो नहीं पूछेगा कि इसको किस सेक्टर से रिलेटेड। अगर ऐसे सवाल यूपीएससी पूछने लगेगा तो फिर कट ऑफ तो भाई 99 क्वेश्चन पर पहुंच जाएगा। हाँ, तो इसके 3 कंपोनेंट हैं, ठीक है, पीएम कुसुम के 3 कंपोनेंट्स, तो इट हैज गॉट 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं? पहला, 17.5 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप्स जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, हम इनको प्रमोट करेंगे। अच्छा, 17.5 लाख स्टैंड अलोन आइसोलेटेड सोलर पंप्स विथ कैपेसिटी अप टू 75 हॉर्स पावर। चलिए ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा जो है टारगेट, दूसरा कंपोनेंट जो है 10 लाख ऐसे सोलर पंप्स जो अभी ग्रिड कनेक्टेड है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, इनको सोलराइजेशन किया जाएगा। Means those which are running on conventional electricity, they will be made to run on solar power, no marks for guessing, with the capacity up to 75 horsepower. अच्छा ठीक है। तीसरा इसमें टारगेट है what?
10,000 megawatt of grid connected renewable power. 10,000 megawatt of obviously grid connected कर देंगे इसको later on solar power. But अभी ये दो हैं, these are the main components. So obviously और इसमें जो size होगा 10,000 megawatt में it will be up to 2 megawatt. तो दो मेगावाट के इस तरह से हम लगाएंगे तो वो 10,000, तो 5,000, okay, different. Later on it will be grid connected. So these are like major off-grid things as far as solar power is concerned, and that Jawaharlal Nehru National Solar Mission was obviously the on-grid target. Clear? Shall we move further here? Now related to solar, just one more topic I would like to discuss with you is International Solar Alliance. International Solar Alliance. Okay, so International Solar Alliance, what it is, and why it is, what it is looking to do, what could be the possible role obviously India can have, etc., etc., etc. See, International Solar Alliance, the 2015 Conference of Party, which was held in Paris. It was an initiative of Indian Prime Minister Mr. Modi and the French President Francois Hollande. Okay. And this International Solar Alliance came into existence. Basically, International Solar Alliance is looking to target 121 sunshine countries. Sunshine countries means which lies between the tropics, means Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, and where they receive 300 plus days of solar power. Solar power. Fine. As all of you know, International Solar Alliance is the first ever international body with its headquarters in India. But then that headquarter, is coming up at Gurugram. Now, what are the targets of International Solar Alliance? See, the target of International Solar Alliance includes $1 trillion fund, $1 trillion fund, and 1 terawatt of solar power. $1 terawatt of solar power, both these to be achieved by 2030. Now again, if you are thinking that under International Solar Alliance the countries will be, or the job of the International Solar Alliance will be to execute solar power projects, ऐसा बिल्कुल नहीं है. International Solar Alliance is an enabler, is a facilitator. इसका काम है conducive environment provide करना, ecosystem provide करना solar power के promote करने के लिए. ये solar power को promote करेगा. Very good. Second, it will carry out research and development to bring down the cost of solar power production. So cost को कम करना है. Under International Solar Alliance, training will be provided to the people from the different countries who are the members, so that they are self-dependent.
Then again you can, one more point you should remember, International Solar Alliance, line of credit will be provided. You must have read in the newspapers that under International Solar Alliance, India has provided line of credit to Bangladesh and some African countries also, and it's good for the diplomacy point of view. And one more thing, under International Solar Alliance, you must remember that risk mitigation funds will also be created. Risk mitigation fund मतलब reinsurance facility, जैसे मैं अगर सोलर पावर प्लांट कहीं पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, आई एम ए प्राइवेट ऑपरेटर, तो फिर कहीं ना कहीं मेरा रिस्क कवरेज जो है वो फंड्स प्रोवाइड करेंगे जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर इंडिया को क्या फ़ायदा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से? देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से इंडिया को अगर हम देखें, इट्स एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया to present an alternative model of development in front of the developing and the least developed countries, which becomes very important in the context of the environmental issues the whole world is facing, be it climate change or other, primarily it is climate change. तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक ये वो है, अवसर है कि हम विश्व के सामने एक विकास का एक वैकल्पिक मॉडल जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें कि स्रोत पर जो है वो इतने ज़्यादा जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पर एम्फेसिस नहीं होगा, रिन्यूएबल सोर्सेज पर एम्फेसिस होगा। और इस तरह से इंडिया अपने आप को, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि विश्व गुरु, ग्लोबल ऑब्वियसली लीडर के तौर पर एक और तरीके से प्रोजेक्ट कर सकता है। बट वो इंटरनेशनल रिलेशंस में हमको नहीं जाना है, हमको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो मैंडेट है उस पे फोकस करना। अब सवाल ये आता है, प्रश्न ये उठता है, द क्वेश्चन इज, देखो तीनों लैंग्वेज में बता दिया मैंने, दैट व्हाट आर द स्टेप्स विच आर बीइंग टेकन और विच विल बी टेकन टू रियलाइज दीज टू गोल्स। हाँ, तो देखिए इसके लिए जो है International Solar Alliance has adopted a three-pronged or three pathways. There are three pathways. First pathway is fund mobilization. Fund mobilization. अब फंड मोबिलाइजेशन में आप सेस की बात कर सकते हो, बट ये $1 ट्रिलियन इंडिया को नहीं देना है भाई, कम ऑन, ऐसे देखो ऐसी बातें करोगे। सो $1 ट्रिलियन विल बी मोबिलाइज्ड बाय ऑल द कंट्रीज हु आर पार्ट ऑफ इट। So they can impose cess or they can come up with anything, carbon tax also some of the countries can come up. इंडिया में कार्बन टैक्स नहीं है। हमने वो जो 400 रुपीज़ पर टन ऑफ कोल की बात करी थी, वो क्लीन इन्वायरमेंट सेस है। क्या है वो? क्लीन इन्वायरमेंट सेस है। अच्छा चलिए ठीक है। इसके अलावा फंड के बाद क्या करेंगे सर? देखिए, प्रोमोटिंग सोलर पावर इन एग्रीकल्चर। देखिए, प्रोमोटिंग सोलर पावर इन एग्रीकल्चर, हियर वी हैव अ स्कीम कॉल्ड कुसुम। हमें एक एग्जामिनर को ये भी दिखाना है कि देखिए सर, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मैंडेट है और उस मैंडेट को अचीव करने के लिए हमने जो डोमेस्टिक स्कीम चलाई है या जो डोमेस्टिक इनिशिएटिव लिया है उसका नाम है पीएम कुसुम। फिर आप इसमें लिख दीजिए कि भाई वो जो 10 लाख जो स्टैंड अलोन जो हमारे वो सोलर पावर वो जो पंप हैं उनको हम सोलर में कन्वर्ट करेंगे और जो हैं इस तरह से और 17.5 लाख हम नए सोलर पंप लगाएंगे। तो ये को पीएम कुसुम में हम एग्रीकल्चर में प्रमोट कर रहे हैं उसको। फिर वो रूरल लाइवलीहुड वाला हॉर्टिकल्चर का डाल दो इसके अंदर। तो स्केलिंग अप एक्सेस टू क्लीन एनर्जी फॉर प्रमोटिंग रूरल लाइवलीहुड, वो आप इसको डालिए इसके अंदर। वो आपकी कनेक्टिविटी पर डिपेंड करता है। और थर्ड है यहाँ पर माइक्रो ग्रिड्स। माइक्रो ग्रिड्स में आप लिंक कर सकते हैं इसको दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से। ओके, ना दीनदयाल माइक्रो ग्रिड्स क्या है? वो भी एक तरह का स्टैंड अलोन जो है पावर प्रोड्यूसर्स हैं
विच आर नॉट कनेक्टेड टू द ग्रिड, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अलग अलग जगह पर। इसको कुछ ऐसे समझो आप, थोड़ा सिंपलिस्टिक तरीके से मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट करता हूँ। देखिए बहुत सारे हमारे विलेजेस हैं, रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस नहीं, अभी हमने देखा कि ग्रिड कनेक्टेड नहीं है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट जो है यंग एंटरप्रेन्योर आप जैसे लोगों से कह रही है कि आप जाइए वहाँ पर सोलर पैनल लगाइए और जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको वहाँ पर लोकली कंज्यूम कराइए। सो दिस इज़ ऑब्वियसली लाइक माइक्रो ग्रिड्स, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। मोर देन 90% ऑफ द माइक्रो ग्रिड्स इन इंडिया आर बेस्ड ऑन सोलर। तो ये बाकी बायोमास पर हैं, फ्यूल सेल्स भी हो सकते हैं उसके अंदर, ये इसमें। तो ये 3 पाथवेज तो ऑलरेडी हैं। 2 और प्रपोज किए हैं इंडिया ने प्रपोज किए हैं, याद रखिएगा। 4th वन जो कि मैं इसको यहां पर नहीं लिख रहा हूं, मैं स्टार बना रहा हूं क्योंकि अभी प्रपोजल है, वो एक है रूफटॉप पैनल। हाँ, जो अब नाउ आई डोंट हैव टू टेल यू अगेन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट रूफटॉप पैनल। और एक और है यहां पर, वो थोड़ा सा फार फैच्ड लग सकता है आपको, दैट इज सोलर पावर्ड व्हीकल्स। Solar powered vehicles. Solar powered vehicles in my opinion can be a better policy for India compared to electric vehicles. क्योंकि अब आप, I hope you are not imagining that on a 4-wheeler or 2-wheeler they put up solar panel, okay, like this, like an umbrella, and when that person is riding or driving that vehicle, that solar panel is vibrating like this. No, please have a bit more sophistication, visualization, and obviously imagination. Here with 3D printing technology using solar ink, we can print solar panels on the exposed parts of the vehicles, and that is where I think it is attractive in countries like India, where we have enough sunlight and where obviously mostly the vehicles are parked outside, especially when you're coming to your workplace. So that is going to be very cost effective and can be done very easily, but it will require a whole new type of research and development. So this is what International Solar Alliance says. Fine, this is the mandate, this is there, and just last line, just last line for International Solar Alliance is that for its enforcement, the condition was it should be signed and ratified by at least how much? 15 countries. 15 countries. So today the number of countries who have signed and ratified is more than 70. So today International Solar Alliance is in existence and it is working, but one very important thing, we have seen the positives associated with International Solar Alliance, that it provides an excellent opportunity to India to play that leadership role, and by promoting and by putting up an alternative model of development in front of the developing and the least developed countries. But इसमें एक चुनौती ये है हमारे सामने कि हमारी जो घरेलू ऊर्जा नीति है और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मैंडेट है, उसमें दोनों में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। अगर उसमें सामंजस्य नहीं होगा या वो एक दूसरे से अलग नजर आएंगे, तो फिर हमारा हम जो दूसरे देशों के में जाकर या दूसरे देशों को जब सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए कहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो बात है उसमें इतना असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो देखेंगे, अभी आजकल तो गूगल का दौर है, वो कभी भी डालेंगे इंडियाज़ प्लान फॉर कोल एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एंड व्हेन दे विल सी दैट वी आर इंक्रीजिंग द कोल प्रोडक्शन, सो देन दे विल सिंपली आस्क अ क्वेश्चन, सर आप खुद तो कोल का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो और हमसे कह रहे हो सोलर एनर्जी। तो वहाँ पर वो एक थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंस की कमी आ जाएगी।
तो बेहतर होगा कि हम अपनी जो डोमेस्टिक एनर्जी पॉलिसी हैं उनको अलाइन करें ग्रेजुअली with overall mandate of the International Solar Alliance, and gradually India should take up the role of promoting other types of renewable energy as well through this body, or obviously better through this body by renaming it in some other way. क्यों नहीं हो सकता? It can be done. Fine. So this was International Solar Alliance. Now after International Solar Alliance, so let me move to, this was related to solar. Now let me move to the next one. The next one is what we call wind energy. Wind energy. Wind energy, as you know, India is the 4th largest wind power producer in the world. 4th largest. And the production is 38 gigawatt. Okay, 38 gigawatt of wind energy we are producing. And one more thing you must remember, that as far as NDC is concerned, nationally determined contribution of India is concerned, which India submitted as a part of Paris Agreement, the target is 60 gigawatt. 60 गीगावाट. अब इसके लिए हमने क्या किया है? देखो 60 गीगावाट इसको टारगेट को अचीव करने के लिए देखो जो दो मेजर पॉलिसीज इंडिया ने अडॉप्ट की हैं. फर्स्ट वन इज नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी. Now, national offshore wind energy policy. Offshore means जो इंडिया का exclusive economic zone है, up to 200 nautical miles from Indian coast, उसमें हम wind plants लगाएंगे. टारगेट क्या है? ऑफशोर का टारगेट बता रहा हूं मैं आपको, कंफ्यूज नहीं होना. ये जो टारगेट है ये ओवरऑल विंड का है, ओवरऑल विंड के लिए है. उसमें से 5 gigawatt by the year 2022 and 30 gigawatt by the year 2030. But 2030, ये जो हमें 60 gigawatt का टारगेट अचीव करना है, that is by the year 2022 तक हमें इस टारगेट को अचीव करना है. अब नेशनल ऑफशोर विंड पॉलिसी जो है, इसमें जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमी, अब इसमें चैलेंज क्या आएगा? इसमें चैलेंज आएगा कि टरबाइन को सस्टेन कैसे किया जाए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, क्योंकि लैंड पर इतना चैलेंजिंग नहीं है जितना कि आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इंस्टॉलेशन की बात करते हैं. इसके अलावा एक और पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट की है, वो है सोलर विंड हाइब्रिड policy. Means we will have solar and the wind together at one place. And this obviously both will be grid connected. Both will be grid connected in this case. You will say, sir, क्यों लेकर आए ऐसा? देखो उसके पीछे रीजन है. इसमें अगर सोलर एंड विंड आर टुगेदर तो वेरिएबिलिटी कम हो जाएगी. Okay, variability means fluctuations in the power production will be less, isn't it? Because they both, solar and wind, will complement each other. If, say for example, if there are clouds but wind is there, so whatever dip in the solar power production will be, wind will compensate for that. And if it is like bright sunny day and it is stand still and where the wind power might come down, so solar power will obviously will complement. So there will not be fluctuations in the power production, so that can easily be connected with the grid. इसको grid से आसानी से connect किया जा सकता है. So that is with respect to wind. अब और पॉलिसी इनिशिएटिव क्या किया है? देखो पॉलिसी इनिशिएटिव में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी जो है चेन्नई में, उसके जरिए गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है लैंड आइडेंटिफिकेशन, पोटेंशियल साइट्स पर पोटेंशियल साइट्स आइडेंटिफिकेशन कराकर जो भी विंड पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनको हेल्प किया जा रहा है. अच्छा,
विंड और सोलर से रिलेटेड एक और बड़ा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है वो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का है। तो ऑब्वियसली सर वो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, सो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर मेंस 2013 question. You never know, might be asked in preliminary. Green energy corridor is related to solar and wind, or rather it is related to renewable energy power production centers. Green energy corridor is an initiative of Ministry of New and Renewable Energy. Ministry of New and Renewable Energy का initiative है ये भी। अच्छा, इसमें है क्या, देखो इसको हम थोड़ा सा ले मैनेज तरीके से अगर समझने की कोशिश करें, वो ये है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कि हम सब जानते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेंटर्स हैं वहाँ पर फ्लक्चुएशंस अक्सर होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद द ग्रिड। सो बेसिकली द मैंडेट, द ऑब्जेक्टिव, द पर्पस, जो उद्देश्य है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, हरित ऊर्जा गलियारा, इसका मैंडेट ये है कि जो हमारे जो ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उनको ग्रिड से किस तरह से कनेक्ट किया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स विद द ग्रिड। अब वो सर वो कैसे, देखिए उसके लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है वो एक बेंचमार्क एस्टैब्लिश कर देता है उनकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का, किसका, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर का। अब आप यहां पर समझ सकते हैं इस बात को कि जब वो बेंचमार्क क्या है, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तो यहां पर कंसिस्टेंसी होगी तो इनको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा विद द ग्रिड एंड दैट इज द पर्पस ऑफ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। As far as green energy corridor is concerned, US is supporting India. So there is a program of USA called PEACE. PEACE is an initiative of US. No, it is not that peace. शांति की बात नहीं हो रही है यहाँ पर. PEACE is promoting energy access through clean energy. Through clean energy. इसमें यूएस हमें सपोर्ट कर रहा है, जर्मनी is also one of them. They are also obviously supporting India in the establishment of the green energy corridor. ठीक, तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, वेरिएबिलिटी है, लैक ऑफ इंटीग्रेशन है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स का विद ग्रिड, दैट विल बी आंसर्ड थ्रू द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ठीक, सो दिस इज द थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट सॉरी, that is the wind as far as renewable is concerned. After wind, the next part is biomass. Biomass means like the leftover part from the sugar factories or other agricultural residue. So the target under NDC for biomass is 10,000 megawatt. 10,000 megawatt. So आप जानते होंगे बायोमास से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है वो ये है कि जो इस तरह की शुगर इंडस्ट्रीज वगैरह हैं या जहाँ पर भी बायोमास जनरेट होता है एज अ फॉर्म ऑफ वेस्ट, दे आर बीइंग आस्क्ड टू हैव कैप्टिव पावर प्लांट. Captive power plant means they can have their power plants, and this captive power plant should be based on biomass gasification. Okay, biomass gasification means what? We will take biomass and will heat it in the partial presence of oxygen. It will form syngas. Syngas. Somewhere you will find bagasse gasification as well. Bagasse gasification, that is also the same thing, gasifying that. So this is how we are going to produce 10,000 megawatt.
Then one more target is small hydropower projects. Small hydropower projects, that is the fourth component, is small hydropower project. देखिए पहले जो पॉलिसी थी उसमें उन्हीं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को रिन्यूएबल में शामिल करते थे, इंक्लूड करते थे जिनकी कैपेसिटी 25 मेगावाट से कम होती थी. So equal to or less than 25 megawatt, that is what's considered as a small hydro. That is what is considered as renewable energy. ठीक है. अब पिछले साल हमने एक पॉलिसी चेंज किया जिसमें लार्ज हाइड्रो पावर जो हैं उनको भी रिन्यूएबल एनर्जी में शामिल कर लिया है. और इस पॉलिसी चेंज की वजह से इसमें सब्सटेंस वाइज को चेंज नहीं है. जिनको हम पहले रिन्यूएबल नहीं मानते थे अब उनको हम रिन्यूएबल मानने लगे. दैट इज इट. तो उससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसमें हाइड्रो पावर सबसे ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जो पहले के भी जो हाइड्रो पावर प्लांट थे वो भी हमने उसमें शामिल कर लिए. बट यहाँ पर जो हमने पहले जो टारगेट रखा था उसमें रखा था 5000 मेगावाट ऑफ स्मॉल हाइड्रो पावर will come from small hydro power projects. अब स्मॉल हाइड्रो पावर क्या होता है जिसकी कैपेसिटी 25 मेगावाट या उससे कम हो. बट लेटर ऑन हमने रिन्यूएबल एनर्जी की डेफिनेशन को रिन्यूएबल एनर्जी में उन हाइड्रो पावर प्लांट्स को भी शामिल कर लिया जो लार्ज हैं, जिनकी कैपेसिटी 25 मेगावाट से ज़्यादा आती है. ठीक है. अच्छा, तो ये हमारा 1,75,000 का टारगेट अचीव हो जाता है इस तरह से. 1 लाख सोलर, 60,000 विंड, 10,000 बायोमास, 5,000 सोलर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स. ठीक है. अब इसके अलावा अगर हम देखें, ये तो मैंने आपको इसलिए एक साथ बता दिए क्योंकि मैंने वो एनडीसी का आपको एक बता दिया कि टारगेट इतना है. एनडीसी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट दैट इज़ नॉट पर्टिनेंट और रिक्वायर्ड ओवर हियर. एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है रिन्यूएबल एनर्जी में जिसको हमने रिन्यूएबल एनर्जी में शामिल किया है, दैट इज वेस्ट टू एनर्जी. वेस्ट टू एनर्जी. You will be surprised to know India has a potential of 5,600 megawatt of waste to energy. 5,600 megawatt का मतलब समझते हो? Almost 80% requirement of a city like Delhi at the peak of summer can be fulfilled through waste. इतना इंडिया का पोटेंशियल है ये 5,600 मेगावाट का. अभी जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, current status, this is potential. Okay, the current status is is 317 megawatt. देखो ये सर ये 317 डेटा, दिस इज एज पर द स्टेटमेंट गिवन बाय द रेस्पेक्टिव मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट. ओके. और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी कंट्री में एज पर दैट स्टेटमेंट गिवन बाय द मिस्टर मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट, वी आर हैविंग 186 प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन वेस्ट टू एनर्जी. ये स्टैटिस्टिक्स है, कहीं पर यूज हो जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा. अच्छा चलिए ठीक है. तो सर वेस्ट टू एनर्जी क्यों? देखो वेस्ट टू एनर्जी, इफ यू सी वेस्ट टू एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन. देखो स्वच्छ भारत मिशन, ऑब्वियसली वी ऑल हैव seen the advertisements and various promotional things associated with that. But Swachh Bharat Mission, one thing you could have noticed is what is written here. I have read in Delhi and other places also. Delhi, I will tell you that Swachh Delhi, Swasth Delhi. Now that is the philosophy behind Swachh Bharat Mission is waste to health. तो पहली चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, waste to health कैसे प्रमोट किया जाएगा. देखो सिंपल सी बात है, वेस्ट जनरेट होगा तो पोल्यूशन होगा, और पोल्यूशन का दूसरा डायमेंशन जो है दैट इज हेल्थ इश्यूज. वेरी 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 कॉमन पॉइंट लेट मी रेज ओवर हियर.
जो भी वेस्ट होता है हम सब जानते हैं उसको, मेजॉरिटी 90% ऑफ द वेस्ट जो है, ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी है, उसको ओपनली डंप कर देते हैं लो इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज में। ओके, हम लो इनकम में खैर नहीं आते, बट हम अपने कंट्री में भी अक्सर देखें तो वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है या होता था कि वो वेस्ट लिया और उन्होंने बाहर जाकर डंप कर दिया। सो जैसे कि आप, लाइक देयर इज अ माउंटेन ऑफ वेस्ट, हीप ऑफ वेस्ट वेयर stench is coming, at times there are fires which is causing the burning, which produces lot of toxic fumes. Then obviously when there is rainfall, you find that this waste percolates down and causes obviously the pollution of groundwater. And if there is excess of rainfall in a very short period of time, you know that waste is carried by that extra water into the nearby water body as well. So these are all, it causes all types of pollution, air pollution, soil pollution, water pollution. बचता क्या है? And visual pollution भी है, visual pollution भी है, it is not a pretty sight by any standard. So here if you see, like it is related to the pollution of the water bodies also, water bodies as well. तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी rivers clean हो, कि भाई we can have a crystal clear water in our rivers like Ganga, Yamuna and many other rivers we had, and it is obviously, just imagine that sight, how beautiful that sight will be, that you are in Delhi, you are passing over Yamuna and you can see crystal clear water, and when the river bed with the sand and the small fishes swimming over there, oh wow, that will be a priceless thing. Similarly Ganga and many other bodies. But वो कैसे होगा? We have to stop that waste going into that water body. And obviously to stop that waste from going into the water body, we have to use that waste. So here we are focusing on municipal solid waste, industrial waste. These are the focus areas as far as waste to energy is concerned. Now move further. तो सर फिर इसको हमने प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया है? देखिए, प्रमोट करने के लिए हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं यहाँ पर। एक इनिशिएटिव जो लिया है कि स्वच्छ भारत मिशन में हम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को एस्टैब्लिश करेंगे। ओके, देखिए, स्वच्छ भारत और वेस्ट टू एनर्जी, दे आर like the twin aspects. You can't imagine cleanliness without taking care of the waste. अच्छा, दिल्ली में ही अगर हम बात करें तो there is a target of having 6 waste to energy plants in Delhi, and the combined projection capacity of these 6 waste to energy plants is expected to be 74 megawatt. अब ये एक बड़ा चैलेंज आ जाता है कि 6 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट दिल्ली एनसीआर के लिए प्लान किए गए, बहुत अच्छी बात है, जिसमें 3 ऑलरेडी हैं, एक ओखला में है, एक गाजीपुर में है और एक एंड दिस नरेला बवाना में है। नरेला बवाना इज वन, देन यू हैव दिस ओखला एंड देन यू हैव दिस गाजीपुर। ओखला तिमारपुर एक ही है। अच्छा, ठीक है। इसमें से प्रॉब्लम, इसमें आपने भी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि ओखला जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है उसको लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उस प्लांट पर 25 लाख का जुर्माना लगाया, और वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो उसको लेकर अपोजिशन भी कर रहे हैं, उसको अपोज भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी जारी है, और वो अब उनका प्लान हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं। अभी तक जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए हैं। अच्छा सर, ऐसा क्यों है, क्यों अपोज? बेंगलुरु में भी आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर भी एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है उसको वहाँ के लोकल्स अपोज कर रहे हैं उसको। ठीक, तो उस पर भी मैं आता हूँ अभी। तो दिल्ली में अभी 3 है। अब 6 अगर 74 मेगावाट 74 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो अब आप देखिए इसकी कमर्शियल वायबिलिटी कितनी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी का रेट बहुत ज़्यादा रखेंगे वो, क्योंकि भाई वेस्ट टू एनर्जी प्लांट चलाना आसान नहीं होगा। तो अब इसको प्रमोट करने के लिए 2 इनिशिएटिव लिए वेस्ट टू एनर्जी को। कैसे? इसमें जो भी अलग अलग तरह की जो गवर्नमेंट सपोर्ट है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40% आता है। कभी सब्सिडी, कभी हमने अर्बन लोकल बॉडीज़ को गार्बेज कलेक्शन के लिए पैसा देती है गवर्नमेंट। ये सारे चीज़ें मिलाकर प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40% सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से रहता है। डिस्पाइट दैट
the cost of the electricity is 6 to 7 rupees per unit. तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज नहीं खरीदती उसको, ये एक बड़ा चैलेंज आ जाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम्स जिसको कहते हैं वो पावर टैरिफ डिसाइड नहीं कर सकते, वो उसके लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, वो पावर टैरिफ डिसाइड करेगा। तो अगर ये 40% सपोर्ट नहीं होगा तो वो 7 रुपीज कहां पहुंच जाएंगे, वो मोर देन 10 रुपीज पहुंच जाएंगे, अप्रॉक्स 10 रुपीज। 10 रुपीज में डिस्कॉम खरीद कर आपको कैसे दे देगा वो 4 रुपए में दिल्ली में जो यूनिट है, या 6 रुपए या 7 रुपए जो डोमेस्टिक वाला है, रफली स्पीकिंग। कमर्शियल का अलग होगा, क्योंकि अब मेरी शॉप नहीं है तो मुझे नहीं मालूम कमर्शियल का क्या होता है। सो नीदर आई रन एन इंडस्ट्री, सो दैट आई डोंट नो अबाउट द कमर्शियल, बट वो भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। सो दैट इज़ वन चैलेंज। तो अब कैसे प्रमोट करें अदर देन फाइनेंशियल सपोर्ट? तो इसलिए आप देखेंगे कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है इसमें। तो मैं यहाँ लिख दूँ, तो अंडर स्वच्छ भारत मिशन what is the target? The target is 6 waste to energy plants in Delhi NCR to produce 74 megawatt। अब क्या हो रहा है इसमें, इसी को आगे करें, 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये एक सपोर्ट होता है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ठीक है। तीसरा आपने भी पढ़ा होगा ओखला, जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, ओखला तिमारपुर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। इसका बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी वो है इनकी बातें। वन साइड दे have been slapped with a fine of 25 lakh, and the other thing is they have received carbon credits from where? From United Nations Framework Convention on Climate Change। United Nations Framework Convention on Climate Change। तो दैट इज़ वन एस्पेक्ट। अच्छा, अब आप कहोगे सर इसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया गया है? देखिए, इसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी को प्रमोट करने के लिए अगर मैं देखूं तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स, दे RDF। व्हाट इज RDF? refuse derived fuel। refuse derived fuel means वो फ्यूल जो कि कचरे से बनाया गया है, रिफ्यूज से। आप अगर दिल्ली में नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देखें तो वहाँ पर उन्होंने एक स्टार्टअप है जिसको वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड दिया गया अपनी कैटेगरी में, ग्रीन वेस्ट रीप्रोसेसर। तो वो ग्रीन वेस्ट रीप्रोसेसर क्या करता है? अब स्टूडेंट हैं, दे ऑब्वियसली ईट फ्रूट्स और सैंडविचेस, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो वहाँ पे ऐसे मत फेंकिए, उसको उस बॉक्स में डाल दीजिए, और उस बॉक्स से वो उस वेस्ट को फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। तो जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स हैं उनका कहना है, सर इफ़ यू आर रनिंग एन इंडस्ट्री एंड दैट इंडस्ट्री इज यूजिंग डायरेक्ट फ्यूल, then at least 5% of the fuel should be RDF। चलिए ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पर, इसके अलावा सर क्या प्रमोशन के लिए किया गया? नेशनल पावर टैरिफ पॉलिसी 2016 में भी एक बात की गई। नेशनल पावर टैरिफ पॉलिसी 2016 में क्या बात की गई है? यहाँ पर बात ये की गई है कि अगर एक थर्मल पावर प्लांट है और उसके 50 किलोमीटर रेडियस में, इन द 50 किलोमीटर रेडियस ऑफ दैट थर्मल पावर प्लांट, देयर इज अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, then it is mandatory for that thermal power plant to use the waste
produced by that sewage treatment plant. तो इस तरह से हम भाई वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस जो हो रहा है उसको आपको यूटिलाइज करवाना पड़ेगा. सो दीज आर द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स और द डायमेंशंस एसोसिएटेड विद वेस्ट टू एनर्जी. यू कैन लिंक इट विद नमामि गंगे. ओके, यू कैन लिंक इट विद इवन स्मार्ट सिटीज. Okay, all these things you can connect, but these are the direct ones we are talking about. Then you will say, sir, like what are the technological, what are the methods for converting waste into energy? Methods. Methods. So methods here, if we see first, incineration. Incineration is the most common method. Incineration means combustion where the fuel is burned, directly burned, and when the fuel is being burned to produce what? To produce energy. That is what we call as incineration. Here obviously you will say, sir, that pollution will be there in the form of flue gases. Yes, pollution will be there in the form of flue gases, but we will try to control that pollution by carrying out the treatment of the flue gases. Okay, you will see that there will be some waste. That waste we can use it by we can use it in the construction, which will be produced from here. Solid waste which will be. चलिए ठीक. Second is gasification. Gasification, here we will take the waste, and that waste will be heated in the partial presence of oxygen. Okay, and this will form syngas, and this syngas we can use for rotating turbine to give the electricity. So this was the question in 2019 preliminary. Gasification use कर लिया, चलिए ठीक है. Third is biomethanation. Biomethanation is nothing but anaerobic digestion. Anaerobic digestion, where obviously in the absence of oxygen, bacteria acting on the biodegradable waste converts it into methane. Okay, that is biomethanation, biochemical process. Fourth is electrochemical. In electrochemical, one example is microbial fuel cell. In microbial fuel cell, bacteria carries out the decomposition of the waste. So anaerobic bacteria decomposes the waste. Okay, and in the process, electricity and water are produced. That is microbial fuel cell. Recently, there is a lot in news, polycrack technology. So polycrack technology, Indian Railways near Bhubaneswar has used polycrack technology for obtaining energy from waste. Polycrack. This is current affairs here. Polycrack technology. Now poly means multiple, crack means heating it, cracking. So there they take all types of waste together. That could be plastic, that could be biodegradable waste, that could be even petroleum sludge and put together. So that is polycrack technology here. Fine. So in the process they get the fuel and some gases, and those gases can also be utilized. So polycrack is also related to waste to energy. So this was a very small effort to discuss waste to energy with you. After that, a very brief discussion on biofuel. 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 Now what is biofuel and all?
anything which is derived from biomass, derived from biomass is biofuel. Now that biomass could be plant or could be animal source as well. Now examples of biofuel: ethyl alcohol, methanol, biohydrogen. Biohydrogen is nothing but hydrogen obtained from biomass. Bio-CNG, biodiesel, green diesel, etc. These are some of the examples of that. As all of you know that biofuel, the concept originated in Brazil, and in Brazil they started a program called Pro-Alcool. Pro-Alcool. Under that program, Brazil promoted the cultivation of sugarcane and sugar beet. And then obviously sugarcane and sugar beet cultivation was promoted so that from sugarcane and sugar beet they can have ethyl alcohol, and that ethyl alcohol can be mixed with petrol. So that blending, the mixing of ethyl alcohol with petrol, उसको जो मिश्रण किया गया इथाइल अल्कोहल का पेट्रोलियम के साथ, उसको 5%, 10%, 15% इत्यादि दर्शाया गया. That is being shown as 5%, 10%, 15%. 5% मतलब 5% ethyl alcohol, 10% means 10% ethyl alcohol in petrol, 15% means 15% ethyl alcohol. And ये बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया. पर इसके साथ क्या हुआ, एक एग्रीकल्चरल पैटर्न में चेंज आया. फार्मर्स स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम फूड क्रॉप टू फ्यूल क्रॉप, क्योंकि फ्यूल क्रॉप कैश क्रॉप है, थोड़ा पैसा ज्यादा मिल जाएगा. अब अलार्म्ड बाय दिस डेवलपमेंट, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक रिपोर्ट लेकर आया. उसका थीम, टाइटल नहीं कह रहा हूं, थीम कह रहा हूं. द थीम ऑफ दैट रिपोर्ट वाज फ्यूल क्रॉप वर्सेस फूड क्रॉप. फ्यूल क्रॉप वर्सेस फूड क्रॉप उसका थीम है. अच्छा ठीक है. फिर सर इसमें उन्होंने कहा कि देखिए अगर ये ऐसा ही चलता रहा, तो डेवलपिंग कंट्रीज में फूड क्राइसिस आ सकता है, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस आ सकता है. तो अब यहां से एक डिबेट शुरू हुआ, एक बहस शुरू हुई कि ऑल्टरनेटिव मेथड्स क्या हो सकते हैं बायोफ्यूल को बनाने के, मतलब इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं किस तरह से की जाएं. सो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन, बायोफ्यूल को अभी तक जो मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, बायोफ्यूल हैज बीन पुट इनटू 4 जनरेशंस. इनको 4 जनरेशंस में रखा गया है. अच्छा, कौन कौन से 4 जनरेशंस हैं, पहले तो वो मैं आपको बता दूं. देखिए फर्स्ट जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है सिंपल, ग्रो द प्लांट क्रॉप, प्रोड्यूस द बायोफ्यूल. तो फर्स्ट जनरेशन में बायोडीजल आ जाएगा. ठीक है. और इसमें जो आपकी इस तरह की चीजें हैं, इथाइल अल्कोहल आ जाएगा. नहीं, बायोडीजल हम इसको थर्ड जनरेशन में भी आएगा. बट ये जो बायोडीजल जो हम फर्स्ट जनरेशन में बात कर रहे हैं, दैट बेसिकली बायोडीजल होता क्या है. देखिए बायोडीजल विच इज वी आर टॉकिंग इन द फर्स्ट जनरेशन, इसको हम एनिमल फैट से बना सकते हैं. ओके, इसको जट्रोफा से भी हासिल किया जा सकता है. जट्रोफा कर्कस, जट्रोफा कर्कस क्या है, ग्रीन गोल्ड कहते हैं जट्रोफा कर्कस को. याद रखना, कभी कभी बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट जैसा क्वेश्चन आ जाता है ना, उसको हम ग्रीन गोल्ड कहते हैं. करंजा, पॉनगेमिया पिन्नेटा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम बायोडीजल को हासिल कर सकते हैं. एडिबल ऑयल, नॉन एडिबल ऑयल, इन सभी को बायोडीजल में कन्वर्ट किया जा सकता है. देखिए चाहे वो एडिबल ऑयल हो, नॉन एडिबल ऑयल हो, आपका जो है
चेट्रोफा हो या इवन ऑलिव ऑयल हो या एनिमल फैट है, इन सब को फैटी एसिड्स कहा जाता है, फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड्स जो हैं वो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं उनको, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्मूला और RCOOH होता है। अच्छा, जब इन फैटी एसिड्स को अल्कोहल से रिएक्शन कराया जाए, इनका अल्कोहल, और अल्कोहल का फॉर्मूला ROH होता है, और ये बहुत फेमस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है। जब एक फैटी एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांस स्टेरिफिकेशन। ट्रांस स्टेरिफिकेशन होता है इसमें, और ट्रांस स्टेरिफिकेशन से ईस्टर मिलता है हमको, यहाँ पर ईस्टर मिलता है। दिस ईस्टर इज biodiesel. This ester is biodiesel. So biodiesel is chemically an ester, whereas diesel chemically is a straight chain hydrocarbon, alkane जिनको हम कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप फैटी एसिड वगैरह, अब आपने भी पढ़ा होगा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया is having a program called RUCO. RUCO is repurposing used cooking oil. There they are collecting the oil from food outlets, various food outlets which are there in the country, and they are converting that oil into biodiesel. That is RUCO. Fine. Then you will say, sir, what is green diesel? Green diesel is also biofuel. I am using the word biofuel. I am not using the word biodiesel. Is also biofuel, but chemically it is similar to diesel. बट उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संरचना जो है, वो डीजल के समान होती है। और वन मोर थिंग, दैट ग्रीन डीजल इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेथड कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसमें कि हम डिफरेंट जो केमिकल्स हैं उनके मिक्सचर को हीट करते हैं और वो अलग अलग टेम्परेचर पर फिर वो कंडेंस होने लगते हैं, उसको ठंडा होने लगता है, ठीक है, उनका शीतलन होने लगता है। तो इस तरह से ये जो है डिफरेंस है बायोडीजल, डीजल और ग्रीन डीजल के बारे में। ठीक, तो फर्स्ट जनरेशन में बायोडीजल, फर्स्ट जनरेशन बायोडीजल आ गया, जो एनिमल फैट प्लांट से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ऑयल से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इथाइल अल्कोहल भी आ गया जिसके लिए हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। इन इंडिया देयर इज नो परमिशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ एडिबल ऑयल इनटू बायोडीजल। क्यों सर, उसकी क्यों इजाज़त नहीं है? क्योंकि वी इंपोर्ट एडिबल ऑयल। सो इकोनॉमिक रीजंस हैं, टेक्निकल रीजंस उसके नहीं हैं। अच्छा, सेकंड जनरेशन जो है बायोफ्यूल का, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल जो है वो प्राइमरीली एग्रीकल्चरल वेस्ट पर बेस्ड है, एग्रीकल्चरल वेस्ट पर। इसको हम लिंक करेंगे स्टबल बर्निंग से अपने आंसर में। हाँ, थोड़ा सा यूटोपियन लग सकता है आपको, आइडियोलॉजिकल लग सकता है, आइडियल लग सकता है, सॉरी, बट फिर भी आइडियल हो तो उसको प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है। और ये स्टेबल बर्निंग ऑब्वियसली आप इसको एयर पोल्यूशन से लिंक करोगे। यहां पर हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को लेते हैं और उसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल्स, तो यू कैन से थर्मोकेमिकल ट्रीटमेंट, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू syngas, and that syngas is converted into fuel. So agricultural waste syngas, so syngas को हम फ्यूल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बायोफ्यूल की बात हो रही है ना। वहाँ पर तो हमने टरबाइन घुमा लिया था, अब हम यहाँ पर टरबाइन नहीं, फ्यूल भी बना सकते हैं उसको। तो ये है। अच्छा, अब आप देखो प्रिलिमिनरी का क्यों क्वेश्चन आएगा इससे, क्योंकि इंडिया का जो फर्स्ट
2G बायो रिफाइनरी, थोड़ा वक्त हो गया इसको, 1-1.5 साल हो गया है उसका अनाउंसमेंट। 2G बायो रिफाइनरी, जहां पर कि 2G जो है बायोफ्यूल बनाए जाएंगे, इट हैज बीन अनाउंस्ड एट बारगढ़ इन ओडिशा। ओके, बट इसमें एक आप कहोगे सर एग्रीकल्चरल वेस्ट तो बहुत डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से प्रोड्यूस होता है, तो उसमें हम कैसे एक जगह हमने बायो रिफाइनरी बना दिया। तो देखिए अब ये भी पॉसिबल नहीं कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में इसको बायो रिफाइनरी को बनाएं, क्योंकि फिर वो इकोनॉमिक वायबिलिटी भी हमको देखना पड़ेगा। तो हाँ, इसमें ये किया जा सकता है कि हम वेस्ट कलेक्शन के लिए, जो स्टबल है उसके कलेक्शन के लिए पॉइंट्स बना दें। पंचायत कुड बी मेड द नोडल पॉइंट्स, इसको हम वेस्ट कलेक्शन को मनरेगा से लिंक कर दें, बट वो सजेशन है आपका, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ये दैट इज सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल। अब स्टबल बर्निंग क्यों होता है वो थोड़ा सा हम नहीं जा रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि टॉपिक स्टबल बर्निंग का नहीं है यहां पर। नाउ थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, also known as algal fuel. Algae. As my habit is, by now you understood, 2017 preliminary question यहां से आया। अच्छा, अब आप पढ़ लीजिएगा उसको। अब सर अलगी जो है उसको क्यों सर, अलगी इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग अमंग ऑल द सोर्सेज ऑफ बायोफ्यूल। अलगी से ज्यादा प्रॉमिसिंग कुछ नहीं है। अच्छा सर, हाँ, algae can be grown almost everywhere except desert. You can have in ocean, you can have in river, in obviously in pond, even obviously you can make a pit to grow algae. Even Reliance Industries Limited, their refinery at Jamnagar, they have gone for collaboration with an American company, Alginol. So Reliance Industries Limited and Alginol, it's a company from US. They have joined hands, and that Alginol is growing algae by using the carbon dioxide coming from the refinery. So what that algae does, converts that carbon dioxide into biomass through photosynthesis, okay, and from that algae oil is extracted, oil, and that oil is converted into biodiesel. Oil है ना, biodiesel है। अब देखो ये एक एग्जाम्पल है इसका। तो अलगी में क्या क्या होगा यहां पर, ये है ऐसे अलगी ग्रो किया, ठीक है, अलगी से हमने ऑयल लिया, दैट ऑयल विल बी कन्वर्टेड इनटू बायोडीजल। Just now told you, trans-esterification. Now residual matter is left. Residual matter is left, the solid part. So we can use biochemical approach. Biochemical approach, the process of anaerobic digestion. Anaerobic digestion, just told you, biomethanation, so it will give us methane, obviously, which we can use for any purpose. And if you don't want to go for this anaerobic digestion, you can obviously go for fermentation also. Fermentation will give you ethyl alcohol. If you don't want to go for that, then you have this option of thermochemical as well. Thermochemical treatment of this residual matter will give us fuel. Okay, so that way algae can give you multiple varieties, multiple options, okay, in terms of obtaining fuel. That is why algae is the most promising among all the sources of biofuel. Okay, last but not the least, you will say, what about fourth generation? Listen here, in fourth generation, this algae is genetically modified. Fourth generation, not in third generation. And the purpose of genetic modification of algae in fourth generation is to increase oil content
ऑयल कंटेंट बढ़ जाए, ये ज़्यादा ऑयल होगा तो ज़्यादा बायोडीजल बनेगा. बट इन इंडिया as of now, we are not talking about fourth, we are primarily in first generation biofuel, starting on second generation, and some corporates have taken initiative for third generation. Clear? बस इसके बाद पॉलिसीज़ क्या हैं बायोफ्यूल के लिए. देखिए हमने अभी तक दो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हैं बायोफ्यूल के लिए. नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2008 एंड नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018. तो हम 18 वाली डिस्कस करेंगे. नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018. अब 2020 में क्वेश्चन आया है प्रिलिमिनरी में. उन्होंने आपको सोर्सेज दे दिए, रॉ मटेरियल, भाई ये बताओ इसमें से इस पॉलिसी ने किस किस को चूज किया है. तो टारगेट क्या है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी का? बाय 2030 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल, मतलब बायोडीजल का 5% ब्लेंडिंग किया जाए, और 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल, 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल. ये तो टारगेट है. फिर यहां पर दूसरी बात क्या की गई है, हमने क्लासिफिकेशन किया है बायोफ्यूल्स का. सो बायोफ्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू बेसिक एंड एडवांस्ड कैटेगरीज. बेसिक में हमने रखा है फर्स्ट जनरेशन इथाइल अल्कोहल एंड बायोडीजल. उसके अलावा सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, बायो हाइड्रोजन, बायो सीएनजी, एटसेट्रा एटसेट्रा, दे आर इंक्लूडेड इन एडवांस्ड कैटेगरी. फिर एक और बात यहां पर की गई है, वायबिलिटी गैप फंडिंग. वायबिलिटी गैप फंडिंग कंसेप्ट आप जानते हो, जब पैसा कम पड़ जाता है तो गवर्नमेंट पैसा देती है. ये एडवांस्ड फ्यूल के लिए होंगे. ठीक है. और चौथी बात यहां पर ये जो है, रॉ मटेरियल्स जो हैं उनको हमने बढ़ा दिया है. अब ऐसे फूड ग्रेन जो कि ये गोडाउन्स वगैरह में डैमेज हो चुके हैं, दे आर नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसको भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए. ओके, सो दिस वाज अ वेरी हम्बल एफर्ट ऑन माय पार्ट to discuss some of the aspects. I have tried to cover as much as I can related to renewable and quasi-renewable. Basically, biofuel we call it quasi-renewable because obviously that as such that cannot be reused, but we can keep on growing and keep on using. So they are inexhaustible in that sense. So when it is inexhaustible, we can call it quasi-renewable biofuel. Others are renewable. What you need to do for your exam, you need to prepare all this what I have discussed, and now here onwards keep on reading newspaper. Whatever has happened I have tried to cover here. Now from here onwards whatever happened, हम next IAS में भविष्य में भी आपके लिए इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे कि जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है उसको हेल्प मिलती रहे. वी आर कमिटेड टू हेल्पिंग द स्टूडेंट्स इर्रिस्पेक्टिव वेयर दे आर. और उसके अलावा आप करंट अपडेट करते रहें. और thank you very much for watching the video, and obviously a bigger thank to our institute who is obviously coming up with such things for the students. Okay, so thank you and all the best.